Yeah, I could see lot many people on screen. Happy to see, thrilled enough to know that you're interested to have a new insight. But unfortunately, today Mr. B.K. Gupta is not joining us because he's suffering with the throat infection. Today morning he informed me, but I'll be continuing with the session. Fine, whatever he has committed to deliver, that is overview of CPC. I'll try to make it more easy and interesting for you. Fine, so good noon, welcome to Just Like Academy's platform. Fine, I'm happy that a lot of people now have downloaded the app and they are associated with us. We will keep on conducting these kind of lectures, seminars just to facilitate you in a better way and give you a new perspective, new insight and approach towards law. Fine, so we really want that the lawyer, who are ultimately to uphold the rule of law in the country, they must be very vigilant and updated with the, whatever is happening in this country, they should be very vigilant, and wherever the injustice is taking place, they should raise their voice for the poor, underprivileged, and the people who cannot afford or cannot have access to justice. That is what you have to make sure to them. So therefore, we'll keep on conducting. This is gonna be an informative session. Although हमारी जो regular classes हैं judiciary की वो बैच हमारा चल रहा है. Anybody out of you who feel like joining the main course can have a retake from Raman ma'am and can join the course as well. So let's start with the today's session. I will take say half an hour to 45 minutes. Okay, try my best to deliver you as much as I can. And if you have any question, doubt, query, just keep it with you. The moment I end of the session, you can ask your questions. Right? So thank you so much for joining us today. Let's begin. देखो broadly अगर मैं बोलूँ, there are two kind of law which are available with us. One is called substantive, other is called adjective and procedural. तो हमारा जो substantive law है that defines or explain the rights, duties and obligation and उनकी enforcement का क्या mechanism हमारे पास में है, क्या procedure है, वो हमें procedural law से पता चलता है. तो जैसे हम इंडियन एविडेंस एक्ट पढ़ते हैं तो दैट इज अगेन अ प्रोसीजरल लॉ, CPC इज अ प्रोसीजरल लॉ, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट इज अ प्रोसीजरल लॉ, फाइन लिमिटेशन एक्ट इज अ प्रोसीजरल लॉ. बट अगर मैं सब्सटेंटिव लॉ की बात करूं तो इंडियन पिनल कोड, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, फाइन NDPS, दीज काइंड ऑफ एक्ट आप हमारे सब्सटेंटिव वन. ठीक है, जहाँ पे आपको क्या मिलता है, एक तो आपका जो राइट है उसके बारे में बताया जाता है, प्रेस्क्राइब्ड पनिशमेंट क्या है, ऑफेंस की डेफिनेशन क्या है, एंड ये सब इसमें मेंशन होता है. So these two categories we can classify the law into, और डिफरेंस मैंने आपको इसका बता दिया. CPC देखो, अगर मैं ओरिजिन से बात करूँ तो Muslims had their own laws and Hindus as per their धर्म शास्त्र they had their own laws and their own procedure and mechanism as to determine somebody's right and obligation or as to confer the punishment upon somebody whosoever is committing the wrong. Right? तो अपने अपना mechanism था, बट उसको कोडिफाई करने का जरूरत था इस कंट्री में, बिकॉज इंडिया को हम लोग एज अ वन एंटिटी और ना इंटीग्रेटेड नेशन देखना चाहते थे. तो उसके लिए ज़रूरी था कि यूनिफॉर्म जो है लॉ वो एप्लीकेबल हो. तो इसकी जो स्लो इवॉल्वमेंट हुई 1908 जनवरी 1, ठीक है, CPC केम इनटू फोर्स. ठीक है, Jan 1, 1908 इट केम इनटू फोर्स. एंड इसमें जो इम्पोर्टेंट आपको करना है अभी, दैट इज अमेंडमेंट यू हैव नॉट टू लीव. तो जो इम्पोर्टेंट अमेंडमेंट है आपकी 2009 की अमेंडमेंट्स, मुस्लिम बार एसोसिएशन की केस में भी चैलेंज हुई थी 2009, 2010 एंड देयर आफ्टर 2015. इसमें आपका कमर्शियल कोर्ट्स एक्ट का जो इमर्ज हुआ है कॉन्सेप्ट. तो कमर्शियल कोर्ट्स मतलब जहाँ पे भी कमर्शियल ट्रांजेक्शन आपकी इंटेक होती है तो वहाँ हम बोल देते हैं कि कमर्शियल, इट वॉज जस्ट डन फॉर द पर्पस ऑफ मेकिंग जस्टिस मोर इफेक्टिव एंड स्पीडी. ठीक है, कि सिविल कोर्ट्स का बर्डन कम हो, सेपरेट कोर्ट्स एस्टैब्लिश की जाए जो कमर्शियल केसेस को टैकल करें. ठीक है, तो ये आप उसमें 2015 का जो अमेंडमेंट है वो भी पढ़ लेना. 2008 और 9 का अमेंडमेंट जो है CPC में, दैट इज इम्पोर्टेंट, दैट इज व्हाट यू हैव टू गो थ्रू. तो उसमें इन ऑर्डर टू एप्लीकेट दिस प्रोसेस, तो जैसे समनिंग का प्रोसेस है, जिन स्टेटमेंट का टाइम बाउंड किया था, ठीक है, समनिंग का टाइम बाउंड किया था, तो लॉट ऑफ डेवलपमेंट टुक प्लेस. Muslim Bar Association, that is the judgment which you have to go through. Then अगर हम स्पिरिट देखें CPC की, it has been divided into two parts, order and procedure. तो जो order and section जो है that is substantive in nature, and order जो है वो in order to facilitate the
अगेन द सिविल प्रोसेस इन द कोर्ट ऑफ लॉ, तो उस ऑर्डर में मैकेनिज्म दिया है इन द फॉर्म ऑफ रूल्स विच कुड बी अमेंडेड बाय द कंसर्न हाई कोर्ट। मान लो अगर आप पंजाब एंड हरियाणा में प्रैक्टिस कर रहे हैं तो यहाँ पे अगर चाहें तो इसको इफेक्टिव बनाने के लिए आप हाई कोर्ट, जो कंसर्न हाई कोर्ट है हमारी, वो रूल एंड ऑर्डर फ्रेम कर सकती है। और इसके साथ में अपने हाई कोर्ट रूल्स एंड ऑर्डर्स, अगर आपको कभी मौका मिलता है, टाइम मिलता है, सिविल लॉस पे भी हैं और क्रिमिनल लॉस पे भी हैं, विच आपको गो थ्रू, ठीक है, हाई कोर्ट की वेबसाइट पे वो अवेलेबल है। एप्लीकेशन का जैसा हमें मालूम है कि अप्लाइज नाउ टू होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट द ट्राइबल स्टेट, नागालैंड एंड असम का कुछ एरिया छोड़ दो, अगर वहाँ की स्टेट गवर्नमेंट चाहे उसको नोटिफाई करना शुरू कर सकती है, ठीक है, ये उसकी एप्लीकेशन की बात करता है। अब देखिए जो सिविल लिटिगेशन है, बेसिकली व्हेन देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द पार्टीज, तो पहला उसका जो इनिशिएटिव कहाँ से इनिशिएट होता है, ठीक है, तो वन पार्टी हु इज एन एग्रीड वन। अभी आपको लेटेस्ट बता देता हूँ, आज की न्यूज़ है, मीडिएशन पे जो बिल आया है, हो सकता है वो पास हो जाए, उसमें उन्होंने ये बोला है कि बिफोर लिटिगेशन द पार्टी शुड बी गिवन अ फेयर अपॉर्चुनिटी टू मीडिएट ऑन द इशू। बट वो ड्रास्टिक है बहुत ज़्यादा लॉयर्स के लिए, एडवर्सली इफेक्टेड होगा। रीज़न ये है कि लिटिगेशन कम हो जाएगी जब आप एक उनको कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म दे रहे हैं कि बिफोर नॉकिंग द डोर ऑफ द कोर्ट और बिफोर सीकिंग द लीगल कंसल्टेशन यू कैन एमिकेबली रिजॉल्व द मैटर, यू नो, बाय सिटिंग और बाय इंटरवेंशन ऑफ समबडी। तो अब ये देखो कि उसमें चांसेस वुड बी कि आपके 70-80% केसेस आउटसाइड द कोर्ट रिजॉल्व होने वाले हैं, ठीक है, तो काम लॉयर्स का बढ़ने वाला है। मुझे लगता है लॉयर्स विल डेफिनेटली एजिटेट ऑन दिस इशू द मोमेंट दिस बिल इज पास्ड, राइट। तो अभी इट इज अंडर कंसिडरेशन। टुडेज न्यूज़ हिंदू में न्यूज़ आज का, ठीक है, तो उसमें यही है कि जो है बर्डन है, कोर्ट ओवर लिटिगेशन है, कंट्री की हेल्थ और इकोनॉमी के लिए बेटर नहीं है कि वहाँ एक प्रोलॉन्ग लिटिगेशन हो और पीस ऑफ द सोसाइटी जो है वो डिस्टर्ब स्टेट ऑफ उसमें हो, अफेयर में, ठीक है, तो इसलिए वो इस तरह का मैकेनिज्म चाहते हैं कि बिफोर इवन litigating the party should be given a fair opportunity. Therefore I was talking yesterday pre-marital and post-marital counseling के बारे में, ठीक है, इतने सारे केसेस हैं, तो in case you feel like initiating you can open your own counseling cell and you can call the parties, intervene and get the matter resolved, right। तो उसका बहुत बड़ा स्कोप है, that is also part of mediation, ये जो प्रपोज बिल की बात हो रही है उसमें, ठीक है। चलिए अब देखिए स्टार्ट कहाँ से होता है काम। जैसे आप सूट फाइल करते हैं, सूट हैज नॉट बीन डिफाइंड एनीवेयर इन सीपीसी, ठीक है, तो हम लोग प्रैक्टिकल ब्रॉडली मोटी मोटी सी बात करेंगे। आई एम नॉट हियर टू टीच यू बट आई विल इन्फॉर्म यू अबाउट द इंपॉर्टेंट प्रोविजंस व्हिच यू हैव टू गो थ्रू, फाइन। तो पहला सूट से स्टार्ट होता है। तो सूट क्या है, आपने अपनी एक स्टोरी जो आपके साथ में हुई, ठीक है, मीन्स स्टोरी कंसिस्टिंग ऑफ फैक्ट्स, ठीक है। अब जो फैक्ट्स हैं, ठीक है, which lead ultimately, which prompt you to file a suit, that is basically a cause of action. Cause of action has not been defined anywhere, suit has not been defined anywhere, but you need to plead the cause of action. If cause of action is not there, तो Order 7 Rule 11 क्या कहता है, dismissal, rejection, sorry, dismissal or rejection of the claim, fine। तो अब क्या है, cause of action has to be there, but it is not been defined. Now what is the meaning of the cause of action? Any circumstances which lead you to file a suit in the court of law, in a set of facts, set of circumstances, right, which actually, give you an opportunity or create an occasion for you to knock the door of the court, that is cause of action, ठीक है। तो अब आपको सूट का पता है, cause of action का पता है, आपको अब जो लीगल ग्राउंड्स है, जैसे सूट जहाँ पे हम फाइल कर रहे हैं उस कोर्ट के पास में कॉम्पिटेंट जुरिडिक्शन होनी चाहिए। अब 3 तरह की जुरिडिक्शन की हमने सीपीसी में बात की, कौन सी, पहले पेक्यूनियरी, फिर हमने टेरिटोरियल और फिर सब्जेक्ट मैटर की बात की, ठीक है। पेक्यूनियरी आपका सेक्शन 6 में है, 9 आपका डील करता है सूट ऑफ सिविल नेचर, कोई भी है, इफ इट इज नॉट एक्सप्रेसली और इम्प्लाइडली बार्ड देन द कोर्ट वुड बी हैविंग अ जुरिडिक्शन टू एंटरटेन, ठीक है। देन आपका सेक्शन 15 ओन वर्ड जो बात करता है प्लेस ऑफ सुइंग की बात करता है, ठीक है, प्लेस ऑफ सुइंग 15, 16 और टिल 21 एंड सेक्शन 21A इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। फ्रॉम प्री पॉइंट ऑफ व्यू, see, you can note down these things, like, if you have a pen and copy with you, you can please note down all these things, because more or less the questions would be asked from these provisions which we are going to discuss, ठीक है। तो keep on noting it down। तो अब 15 to 21 आपने जुरिडिक्शन का पार्ट कर लिया, 6 में आपने पेक्यूनियरी जुरिडिक्शन की बात पढ़ ली,
अब इसमें दो इंपॉर्टेंट प्रोविजन है सेक्शन 10 एंड 11 विच यू हैव टू गो थ्रू, ठीक है, जो आपका स्टे ऑफ सूट की बात करता है और रेजिडी काटा की बात करता है। रेजिडी काटा के बिना तो कोई पेपर बनेगा नहीं। इट इज सच एन इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ सीपीसी, ठीक है, विच कैरीज अटमोस्ट वेटेज एंड इम्पोर्टेंस, ठीक है। रीजन उसका बहुत क्लियर सा है क्योंकि जो इसमें प्रिंसिपल आपने डिनोट किए हैं वो प्रिंसिपल मैं बोलता हूँ कि आई मीन आई सल्यूट द पर्सन्स हूसोएवर हैज कार्व्ड आउट दिस प्रोविजन एक्चुअली, ठीक है। दो तीन देखो उसके फायदे हैं, बिकॉज देयर हैज टू बी एन एंड टू लिटिगेशन वन, एंड दिस जो डिसीजन है कोर्ट का वन, इट हैज बीन डिसाइडेड अपॉन द मैरिट, दैट शुड बी रिगार्डेड, रिस्पेक्टेड एंड ऑनर्ड, ठीक है। टू and three, there should not be a continued litigation, like any person who is affluent enough should not be in the position to suppress the weaker one, ठीक है, weaker one। और वो ये नहीं है कि लिटिगेशन खत्म हो गया उसी कॉज के ऊपर में सेकंड लिटिगेशन फिर स्टार्ट कर दिया, ठीक है। there will be no end to litigation then and it would disturb the peace of the society and would cause a prejudice to the growth and economy of the country as well। तो इसलिए वहाँ पे एंड ऑफ लिटिगेशन होना चाहिए। तो ये बेसिक मोटे मोटे से प्रिंसिपल है रेजिडी काटा के, ठीक है। वन शुड नॉट बी वेक्स्ड ट्वाइस फॉर द सेम कॉज ऑफ एक्शन, ठीक है, व्हिच यू हैव टू रिमेंबर। स्टे ऑफ सूट का मोर और लेस सेम है, बट उसमें क्या है, फर्स्ट सूट इज पेंडिंग, whereas in रेजिडी काटा सूट हैज ऑलरेडी बीन डिसाइडेड बाय द कोर्ट ऑफ कॉम्पिटेंट जुडिक्शन ऑन मैरिट, ठीक है। स्टे ऑफ सूट में क्या, फर्स्ट सूट इज पेंडिंग, यू इनिशिएट द सेकंड सूट, now the court has come to know that the second suit has been initiated, ठीक है, then the suit which has been initiated later on would be stayed, subsequent suit would be stayed, to avoid the conflicting judgment and to cause undue hardship and inconvenience parties को ना हो, conflicting judgment ना हो। These are few principles like which you have to remember। Rest of this Now if you talk about the section, अगर आप डेफिनेशंस पार्ट में आते हैं सेक्शन 2 में, तो उसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस आपका डिक्री का है। डिक्री में से देखो आपको ऑन दी वन रीजन और दी अदर क्वेश्चंस वुड सर्टेनली बी आस्क्ड। तो उसमें अब डिक्री और ऑर्डर में डिफरेंस, डिक्री और जजमेंट में डिफरेंस, 2(9), 2(14) एंड 2(2), दीज आर द प्रोविजन व्हिच यू हैव टू गो थ्रू। फाइन। अब सबसे पहले आप देखिए, अब डिक्री क्या है, फॉर्मल एक्सप्रेशंस ऑफ एन एडजुडिकेशन। आप एडजुडिकेशन का मतलब आपको बताना चाहिए, फॉर्मल एक्सप्रेशन बताना चाहिए। ऑर्डर को आप पढ़ेंगे तो उसमें भी ये लिखा है फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ ए डिसीजन, नॉट एन एडजुडिकेशन। इन दोनों में डिफरेंस है। ठीक है, अब व्हाट इज डीम्ड डिक्री एंड व्हाट इज प्रिलिमिनरी एंड फाइनल डिक्री। ठीक है, अब डीम्ड डिक्री क्या है, उन्होंने बोला रिजेक्शन ऑफ क्लेम and proceedings under section 144 restitution, that would also be considered as a decree. But what will not include in decree, dismiss in default, that will not be included in the decree. So if the case has been dismissed in default, जैसा हमने पढ़ा order 9 on account of non appearance, तो वो आपका decree नहीं है, but rejection of claim will amount to deemed decree. And question pertaining to section 144 also would amount to deemed. Then preliminary and final decree. आप preliminary decree कहाँ पे फाइल हो सकती है, हमने ऑर्डर 20 में पढ़ा था, चाहे पार्टीशन में, मोर्गेज में, पार्टनरशिप केसेस में। ठीक है, तो इस तरह के जो केसेस हैं जहाँ पे आई मीन these some kind of apportionment or the settlement is to take place, you know, these are the cases. ये कॉन्सेप्ट आपको एक तो फॉलो, ऑर्डर और जजमेंट का डिफरेंस, देन इसमें इंपॉर्टेंट आपका मेन टॉपिक का डेफिनेशन 2 एंड देन कॉन्सेप्ट ऑफ द फॉरेन कोर्ट, फॉरेन जजमेंट एंड एग्जीक्यूशन ऑफ द फॉरेन डिक्री इन इंडिया। कौन सा सेक्शन है बल्कि 13, 14 वो तो डिफाइन करता है, अब एग्जीक्यूशन का है उसका। टू सबसेक्शन 5, 2 सबसेक्शन 6 फॉरेन कोर्ट, फॉरेन जजमेंट क्या है, एंड देन वेयर द फॉरेन जजमेंट विल नॉट बी कंक्लूसिव, सेक्शन 13 व्हिच हैव टू गो थ्रू। एंड एग्जीक्यूशन कहाँ लाई करती है, आपके पास में फॉरेन डिक्री आ गया, आप कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहे हो, नाउ द पार्टी कंसर्न्ड वांट दैट इट शुड बी इम्पोज्ड इन इंडिया। ठीक है, तो पहली कंडीशन क्या है इन्फोर्समेंट के लिए और कौन से सेक्शन में। पूजा यू कैन आल्सो टेल ऑनलाइन इफ यू रिमेंबर, वेरी नाइस, 44 सेक्शन 44।
जब भी आपने फॉरेन कोर्ट का कॉन्सेप्ट आपसे पूछा जाता है तो दीज आर द रेलेवेंट प्रोविजन व्हिच आर रिपोर्टेड। अब देखिए दी सेकेंड, अब आपने सूट तो फाइल कर दिया, बट सूट के लिए आपको रिक्वायरमेंट क्या थी? पहली रिक्वायरमेंट है कि फ्रेमिंग ऑफ सूट आप किस तरह से करेंगे। तो पार्टी कंसर्न, फाइन, कोर्ट कंसर्न एंड ऑल द लीगल इश्यूज एंड द फैक्ट्स व्हिच यू हैव टू मेंशन व्हाइल योर प्लीडिंग्स। ठीक है, तो प्लीडिंग आप पढ़ते हो 6, 7 एंड 8 में। ठीक है, क्लेम एंड रिटन स्टेटमेंट बोथ आर प्लीडिंग्स। आप अमेंडमेंट ऑफ प्लीडिंग क्या है? स्ट्राइक ऑफ कहाँ कर सकते हो आप प्लीडिंग को, जो कि आपकी आपने फ्रिवलेस है, फिक्टिशियस है, ऐसी प्लीडिंग्स को कौन सी प्रोविजन? स्ट्राइकिंग ऑफ ऑर्डर और भी बता सकते हैं। Today you can also tell. Order 6, Rule 17. 15. It's not. 17 is amendments. Verification. 15 is verification. 16 is striking off. 17 is amendment. very nice. Right. So with regard to pleading, these three provisions you have to memorize. 6, 15 it should be supported with the verification. 16 जो baseless issue है, absurd issue है, that would be हमें strike out. अननेसेसरी कोर्ट उस पर अटेंशन नहीं देगी, टाइम वेस्ट नहीं करेगी। और 6, 17 अमेंडमेंट है जिसमें से क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रोविजन। ठीक है, ऐसे ही आपने विद ज्वाइंडर, नॉन ज्वाइंडर ऑफ पार्टी, ज्वाइंडर ऑफ कॉज ऑफ एक्शन, किसमें है ज्वाइंडर ऑफ कॉज ऑफ एक्शन? Order to Rule 3. वेरी नाइस, ऑर्डर टू रूल 3 ज्वाइंडर ऑफ कॉज ऑफ एक्शन की बात करते हैं। ठीक है, देन ऑर्डर 7 जिसमें कोर्ट ये बोलती है, देखो रिजेक्शन ऑफ क्लेम पे ना अभी 3-4 लैंडमार्क जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट की। अब क्यों है रिजेक्शन ऑफ क्लेम? मान लो एक आप यू हैव बीन लॉन्चिंग अ लिटिगेशन अगेंस्ट समबडी, नाउ विदाउट एनी बेसिस यू वुड बी पुटिंग समबडीज लाइफ इनटू jeopardy इन पैरल। फाइन, अब कोर्ट ये चाहती है कि ऐसा कोई इशू जिसपे हम लोग अपनी फाइंडिंग या रीजनिंग दें और जो कल को एक फुटाइल एक्सरसाइज प्रूव हो। ठीक है, तो हमें उसके लिए जाना ही नहीं। तो अब अगर आपका सूट जो है दैट इज डेफिशिएंट बिकॉज ऑफ दीज 6, 7 थिंग्स, अंडर वैल्यूड है, अंडरस्टैंड है, कॉज ऑफ एक्शन नहीं है, डुप्लीकेट में फाइल नहीं किया है। जो डुप्लीकेट वाला है ना, ये अमेंडमेंट है, वाइज ऑफ अमेंडमेंट है। ठीक है, तो अगर ऐसा है, ठीक है, और वार्ड बाय लॉ है स्पेसिफिकली, तो इन कंडीशंस में क्या है कि आप रिजेक्शन ऑर्डर कर दोगे। ठीक है, तो उसको प्रोलॉन्ग करने का कोई औचित्य नहीं बनता। ठीक है, दिस विल नॉट बी एप्रोप्रिएट लाइक टू कैरी ऑन विद द सूट एनी कोर्ट, बिकॉज़ दैट वुड बी मेनली अ वेस्ट ऑफ टाइम। तो 7-11 एंड 7-10 रिटर्न ऑफ क्लेम, दीज टू आर इंपॉर्टेंट प्रोविजन। ठीक है, इन दिस ऑर्डर। सिमिलरली अगर हम ऑर्डर 8 में आते हैं, देखो सबसे पहले ना आपको किसी भी प्रोविजन का वाई दैट शुड बी क्लियर टू यू। मान लो अगर मैं आप सेट ऑफ और काउंटर क्लेम की बात करता हूँ, तो आपके माइंड में ये पिक्चर होनी चाहिए, व्हाई सेट ऑफ, व्हाई नॉट सेपरेट सूट, व्हाई काउंटर क्लेम, व्हाई नॉट सेपरेट सूट। फाइन, सो व्हाई दिस प्रोविजन और दिस आई मीन रेमेडी हैज बीन, दिस मैकेनिज्म हैज बीन प्रोवाइडेड अंडर लॉ। ठीक है, तो फिर आप उसके ऑब्जेक्ट पे जाओगे, फिर अपनी रीजनिंग डेवलप करोगे, देन यू विल बी हैविंग क्लैरिटी एंड यू विल बी एबल टू सोल्व द क्वेश्चन विद ईज। ठीक है, तो नाउ मुझे वन वर्ड में बताओ, सेट ऑफ और काउंटर क्लेम रखने की जरूरत क्या पड़ी? Reduce the litigation. Reduce the time. Okay. Okay. Time expenses. Multiplicity also. Right word. बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। Nice. चलो अच्छा है यार, मेरे बच्चे भी विजिलेंट हो गए हैं, इतना आंसर करने लगे हैं, दिमाग लगाने लगे हैं। आई एम हैप्पी टू सी। नाइस। ठीक है, तो सेटअप जो है वो मनी सूट में, अगर आपका क्लेम है और एक कॉन्ट्रैक्ट क्लेम है मनी का, ठीक है, देन तो सेटअप वुड बी अलाउड। तो अब कोर्ट ये चाहती है कि आप सेपरेट सूट मत फाइल करो, डिफेंडेंट के पास में रिटन स्टेटमेंट जब उसने फाइल करनी है तो उसके साथ में अपना सेटअप प्लीड करेगा। ठीक है, तो काउंटर क्लेम वुड बी अ क्लेम इन काउंटर, नॉट नेसेसरली दैट इट शुड बी इन अ मनी ओनली। ठीक है, तो आप काउंटर क्लेम प्लीड करते हो, तो कोर्ट को जो अपनी जजमेंट, फाइंडिंग और रीजनिंग देना है वो एक ही सूट में दोनों पार्टीज का जो केस है वो हो जाएगा डिसाइड। ठीक है, प्रोविजंस कहाँ है इसकी, सेट ऑफ एंड काउंटर क्लेम? ओके, 6A2 जी, H D देख के बता दो यार इंडेक्स। जी, यस, जी,
गॉड से याद रखो इसको. 6A to 6G जो है that talks about the contract name and 6A is meant for, sorry, 6 is meant for setup. Now then we proceed further, like order 9 it talks about the appearance and non-appearance. Most important मैंने इसमें से आपको बताया था 930, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक्स पार्टी डिग्री के केस में आपके पास में क्या क्या रेमेडीज हैं. अब मुझे क्विकली बताओ क्या क्या रेमेडीज आपके पास. नो तेरा एक्स पार्टी हो गया, आप डिफेंडेड टू, यू आर अग्रीव्ड नाउ, व्हाट वुड यू डू? You have not been heard, you have been condemned unheard. Now you come with the ground, is that I was not served properly, I was not informed. Okay, review before the same court, setting aside by way of review, or setting aside the application of फाइल कर बिल्कुल ठीक है. हाँ, रिव्यू के लिए भी बोल सकते हो और आप अपील भी आप सेपरेट फाइल कर सकते हो, बिकॉज दैट इज अ डिग्री. तो डिग्री के केस में ऑर्डर 96 में अपील नहीं करता है. ठीक है, वेरी नाइस. पूजा आज बादाम आपने खूब खाए. आई एम रियली हैप्पी, लाइक यू आर अवेयर. बट 913 इज वेरी इंपॉर्टेंट, इस पे क्वेश्चन पूछा जाता है. Nine 4, 9 6, 9 8, 9 9, not to miss. Then order 10 which is to be read with section 89 ADR की बात करते हैं. तो हम बात करके हैं यहाँ पे मीडिएशन वाला प्रोसेस. ठीक है, कि हर कोर्ट का एक एंडेवर होना चाहिए पहले कि कोशिश ये हो कि आपका रिकंसाइल करवा के मैटर जो खत्म करवा दें. ADR का पूरा जो कॉन्सेप्ट है इस पर आप एक आर्टिकल पढ़ लीजिए ऑर्डर 10 के ऊपर, तो आपका जॉब जो हो जाएगा. देन आपका इंटेरोगेटरीज, इंस्पेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स एंड 11 वाला 13 लीस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हार्डली आस्क एंड प्रैक्टिस में भी हार्डली यूज होता है, बट यू हैव टू गो थ्रू एक बार. इंपाउंडिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स, इंटेरोगेटरीज, उनका क्या पर्पस है, क्या ऑब्जेक्ट है, आप एक बार देखिए. नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्डर कम्स एट फ्रेमिंग ऑफ इशू. फर्स्ट टास्क व्हेन द कोर्ट हैज येट टू बिगिन विद द ट्रायल. अब यहाँ से आपका ट्रायल का प्रोसेस शुरू. How would you frame an issue as a judge? कैसे करोगे? किस बेसिस पे करोगे? मीटिंग. दोनों पार्टीज की मीटिंग देखने के बाद यू विल डिसाइड क्या इश्यूज बनते हैं इसमें. और कल हमने एविडेंस एक्ट में पढ़ा कि ये फैक्ट एंड इश्यूज हैं which the court has to decide. कोर इशू बिफोर द कोर्ट. अब कोर्ट को ये पता होना चाहिए, देखो हमने टाइम भी कट शॉर्ट करना है और हमने रेलिवेंट चीज़ों पे बात करनी है, इरेलीवेंट और इलॉजिकल चीज़ों पे हमने ध्यान नहीं देना है. ठीक है, जिसका कि कोई फायदा नहीं है कोर्ट में इधर उधर की बातों का. ठीक है, इट इज नॉट दैट वी आर टेलिंग अ स्टोरी टू द कोर्ट एंड द कोर्ट विल बी आई एम नॉट सिटिंग आइडल कीप ऑन लिसनिंग यू. एंड कोर्ट रियली वांट टू नो एज टू व्हाट आर द इश्यूज बिटवीन बोथ ऑफ यू, wherein you require our assistance to give you adjudication. आप हमारे पास में आए हो ना, इसलिए आए हो कि आपका मैटर एडजुडिकेट करके आपको फाइंडिंग और रीजनिंग दें which would be binding upon you because we hold the power as a court. ठीक है, तो अब हमें बताओ कि आपका बोन ऑफ कंटेंशन क्या है मेन. ठीक है, तो अब ये बोलता है कि सर ही हैज बीन ऑक्यूपाइंग अ बिल्डिंग नॉट पेइंग रेंट. वी बोलता है सर आई बीन पेइंग रेंट रेगुलरली बट सिंस द प्राइस आई मीन द रेंटल हैज बीन इंक्रीज इन दैट लोकेलिटी सो ही वांट टू रिजेक्ट मी. फाइन, अब ये क्लेम है, अब कोर्ट ने देखना है कि अब ये सच बोल रहा है या भी सच बोल रहा है, तो इस पर आप इशू फ्रेम करोगे. फर्स्ट इशू वुड बी वेदर द रेंट इज बीइंग पेड टाइमली और नॉट. सेकंड इज वेदर आई मीन द ग्राउंड व्हिच हैज बीन टेकन डिफेंस दैट इज टेनेबल और नॉट. ठीक है, तो ये दो इश्यूज आपके फ्रेम हो गए. अब इस पे आपकी फाइंडिंग रीजनिंग और सारी इन द लाइट ऑफ एविडेंस डिसाइड करना. ठीक है, सो फैक्ट्स इन इशू मेन ये. आप अगर फैक्ट इन इशू को आप डायरेक्टली फॉर एग्जांपल आप एग्जांपल लेता हूं आपको एविडेंस भी क्लैरिटी मिल जाएगा. फर्स्ट फैक्ट इज दैट A and B has entered into an agreement on 30th 10 2021. This agreement was reduced into life. Now this was witnessed by the witnesses. ठीक है, proper stamp were purchased for this purpose. Fine. And property which was mentioned to be purchased, that was actually shown. All the revenue record was also, copy of the revenue record was also produced, and which was duly inspected. These all are facts. These all are facts. Now, when A wanted that now sale should be taken place, fine, a date was decided for that.
when both the parties were supposed to appear. Okay? But B did not appear intentionally. And when he was approached or when he was served with the legal notice that since you have received the earnest money, now you need to discharge the part of the contract, please come forward and get the seal deed executed. Fine? He did not respond to the legal notice. Fine? So this way he has committed cheating also, and he has forfeited my earnest money also. Okay? Now he be directed to perform the contract specifically. This is a cause of action. Got my point? The moment you serve the legal notice or you approached him personally and he refused to get the seal deed executed, now all these facts lead to what? This set a cause of action for you. Now when you are drafting a plaint, you are to mention fact, line by line, word by word. He said, we entered and this is the proof. We purchased, this is the proof. I paid this money, this is the proof. Fine. Now all these contentions, whatever you are raising or affirming or asserting before the court of law, you will have to prove by the evidence. Fine. तो ये सारा जो काम था ना ये करोगे आप. उसके बाद में कोर्ट बोलेगी अब लेके आओ one by one evidence. Now we want to see who is right, who is wrong. So when if you have served the legal notice, you will be serving a copy of the legal notice, producing a copy of the legal notice on the court. Fine. If you have deposited, paid the earnest money, then you will be furnishing the proof of the same. Okay. Then you will be bringing the evidence, then court will be with you ultimately and give you decree in your favor and direct the B to get the seal deed executed. This is the concept of pleading. How the facts are to be mentioned, how the facts are to be proved in the court of law. ठीक है. अब आपने कैसे प्रूव करने हैं? आपने पढ़ लिया ऑर्डर 16, ऑर्डर 18 दोनों पढ़ लिया आपने. ठीक है. 16 में आपने पढ़ा एग्जामिनेशन of the witnesses and 18 में आपने पढ़ा, देखो 18 में 16 summoning of the witnesses and 18 में examination. ठीक है. Now how the examination is to be taken place, how the party witnesses concerned are to be summoned. अब देखो कितने सारे आप लिटिगेशन किसमें है, ए और बी के बीच में, और कितने लोग हैं विटनेसेस टू दिस. फाइन. लीड राइटर विटनेस है, जिससे स्टैम्प पेपर खरीदे वो विटनेस है, जहाँ पे आपका एग्जीक्यूट हुआ, मान लो सब रजिस्टर के पास में एग्जीक्यूट हुआ, ठीक है, उसका ऑफिशियल रिकॉर्ड जो है दैट इज द विटनेस फॉर यू. So a lot of people have involved into one particular transactions who will be called by you in the witness box to support your case. Ultimately, who's asserting he has to, proof. उसके ऊपर में burden है ना, burden of proof में, ठीक है, तो उसको प्रूफ करना है, तो वो सबको बुलाया जाएगा बंदा. Then will be approved. अब he will plead a defense. जो डिफेंडेंट है बी, द वेंडर, वो डिफेंस लेके आएगा. और डिफेंस उसकी प्रिपेयर करने में हेल्प करता है लॉयर. ये भाई चिंता मत कर, तेरी प्रॉपर्टी की प्राइस बढ़ गई है, तो ज़्यादा में बेचेगा, इसका पैसा अनलेस मनी ज़्यादा से ज़्यादा वापस करके हम लोग खत्म कर देंगे. अब डिफेंस बनाएगा वो अपने दिमाग से, कीपिंग इन व्यू द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस, ठीक है, एंड कीपिंग इन व्यू द डिस्कशंस टेकन प्लेस. तो हो सकता है उसको प्रोलॉन्ग कर लिए 3-4 years 5 years, यू नेवर नो. एंड तब तक हो सकता है कि प्लेंटिव जो पेशेंस लूज कर दे और बोले यार मेरा पैसा दे के ऐसा खत्म करेगा, ठीक है. तो यूजुअली यही होता है. तो आपने क्या किया, उसकी डिफेंस प्लीड करके उसको सेव कर दिया. नाउ यू आर अ लॉयर, राइट. दिस इज द जॉब व्हिच यू हैव टू डू, यू कांट रिफ्रेन. तो यहाँ पे आप ये नहीं बोल सकते कि सर मेरी एथिक्स और मेरी वैल्यूज जो हैं वो मुझे परमिट नहीं करती हैं, आई शुड नॉट डिफेंड हिम. राइट. इट इज योर जॉब, moral responsibility and obligation. When you get the court, you will have to do it. You don't have any other alternative. You will come across with both good and bad guys. Okay. You have to do your best. अगर जेठमलानी साहब ये सोच रहे थे कि उन्होंने डेविल स्क्वायर नहीं कहलाते थे, बैड लोगों को उन्होंने हेल्प नहीं करना है, असिस्ट नहीं करना, ठीक है. तो इट इज द पायस ऑब्लिगेशन व्हिच यू हैव टू परफॉर्म बीइंग एन ऑफिसर ऑफ द कोर्ट. वी हैव ऑलरेडी रेड, आई हैव गिवन यू इन राइटिंग आल्सो कि आपका एज एन एडवोकेट क्या रोल है, ठीक है. तो अब आप जजेस बनने जा रहे हैं, मोर ऑब्लिगेशंस अपॉन यू. नाउ यू हैव टू बी मोर विजिलेंट, मोर रैशनल, एंड यू हैव टू बी ऑन बुक्स सो दैट यू कीप योरसेल्फ अपडेटेड, ठीक है, एंड डिसाइड अकॉर्डिंगली. पासिंग ऑर्डर डे टू डे, rendering judgment, that too rationality correct and in view of the law, ठीक है, while upholding the spirit of it, which is not an easy task. So you are
going to be more responsible, sensitive, right, towards society. Because अब देखो एक चीज विडम्बना, you are being paid for what? To adjudicate the dispute of the parties. Now from where you are getting salary? Who is funding it? State. From where state is getting money? From people by way of taxes. So now you have a responsibility and accountability to a person. In fact, the person who is a consumer of justice before you is feeding you. Nobody understands this phenomenon actually. आप समझो ना, हमें सैलरी मिल रही है, हम बोलते हैं कि आई एम ऑल पावरसम, आई एम द वन हु कैन डू इट. I mean, sometimes we become very harsh with the litigant, right? With the lawyers, because of our arrogance and ego, false ego. Right? But we never understand that here I am sitting because of them, and they are the one who are funding me and my family, and I owe a duty towards them to do justice and to serve for whatever they have come to me in my. ठीक है, इस spirit और इस mindset से आप बैठना शुरू हो जाओगे ना, तो you would be more, I mean, there will be more courtesy in you, in humility, courtesy, and एक वो होता है ना generosity, and एक वो सेवा भाव करने का dedication and commitment. ठीक है, तो वो सब चीजें आपके अंदर हैं. चलिए 14 हो गया, इशू फ्रेम कर लिया. अब आपने आप जो कंट्रोवर्शियल क्वेश्चंस ऑफ फैक्ट्स एंड लॉस है उस पर इशू कर दिया. नाउ यू हैव टू डिसाइड. अभी क्या है, 15 में आपको एक ऑप्शन देते हो अगेन कि यार आ जाओ एडमिट कर लो, ठीक है, काय को लंबा खींचना. अगर लगता है कि कोई ट्राइबल इशू नहीं है तो आप वहीं पर खत्म कर दोगे. 16 में you'll be now समझिंग दी बात. विटनेसेस. अब देखो, witnesses plays an important role. They are called the eyes and ears of the court. Like yesterday we discussed that court cannot get up and approach or see as to what has actually happened. Now you are to decide the matter on the basis of the documents produced before. Okay. Although document cannot tell lie, but witness can still depose lie before you. Now therefore you are to note the demeanor of the witness also in the court as to how does he behave. When the question is asked whether he agitated or whether he respond coolly, right? And you have to note each and everything. कहाँ है demeanor का concept? CRPC. Demeanor of witness. No. 280 is right. Very nice. उधर भी आज खाएं आपके पक्का वाला. You have been answering everything correctly. आज कुछ है. चलो good है. आप पढ़ रहे हो, बहुत अच्छी बात है. ठीक है. ओके. तो अब क्या है कि आपने डिविजन भी नोटिस किया. आपके पास में अब सिविल लॉस में क्या है कि आप रिलाई कौन कर रहे हो ऑन अ डॉक्यूमेंट 80-90%. ठीक है. देखो, विटनेसेस कुड बी परचेज्ड, थ्रेटन्ड, इंड्यूस्ड, इन्फ्लुएंस्ड, बट डॉक्यूमेंट कैन नॉट बी मैनिपुलेटेड और फैब्रिकेटेड, बिकॉज इफ इन केस इट इज मैनिपुलेटेड, फैब्रिकेटेड एंड इट इज प्रूव्ड, देन इट वुड invite a serious consequences for the person who has done so. ठीक है. अभी there is one case. The filing the false affidavits amounts to what? Perjury. ठीक है. अभी कल परसों का केस है, सुप्रीम कोर्ट ने बहुत लगाई है. ठीक है. अब you can't furnish the, you can't mislead the court, you can't take the court for a ride. This is a temple of justice. Now you are going to touch this fountain of justice with the tainted hands, which will not be allowed at all. So if you do so, then you would be subjected to deserve punishment. जो भी आपको मिलनी है वो मिलेगी. ठीक है. अब क्या है, आपने समन कर लिया विटनेसेस को. अब कोर्ट बोलती है डे टू डे प्रोसीडिंग शुरू हुई है. ऑर्डर 17 में नो मोर देन कितनी एडजमेंट्स अलाउड है? 3 एडजमेंट. राइट. उससे ज़्यादा अलाउड नहीं है. ठीक है. तो आप 17 में एडजमेंट का कंसल्ट करते हो. 18 में देन आप हाउ द विटनेसेस आर टू बी एग्जामिन्ड. प्लेंटिफ का पहले होगा, डिफेंडेंट का पहले होगा, कौन से ऑर्डर में होगा. तो ऑर्डर 18 रूल 3 और 3A आई सपोज दीस आर द टू प्रोविजंस व्हिच हैव टू गो थ्रू. देन 19 में दैट हमने पढ़ा था कल एविडेंस एक्ट का जब डेफिनेशन पढ़ रहे थे, तो एफिडेविट जो है वो एविडेंस नहीं है, बट दिस इज वन एक्सेप्शन वेयर कोर्ट वांट यू टू फर्निश आई मीन द एविडेंस बाय वे ऑफ एफिडेविट, देन इट विल बी कंसीडर्ड एज एन एविडेंस. ठीक है. 19(1) आपके पढ़ रहे हैं. ऑर्डर 19 रूल 1. That is judgment. Now you have to get the judgment.
ठीक है, on the basis of the reading material on record and appreciation of evidence, you would be given issue wise finding, ठीक है, and उस finding के basis पे आप अपनी judgment whether this would is to be decreed or not to be decreed, ठीक है, and judgment में से आप draw करोगे decree. तो within how much time the judgment is to be rendered? अगर आप soon after hearing the argument नहीं करोगे तो कितने टाइम तक आप रिजर्व कर सकते हो? बड़ा आपने 30 days. 30 days. और डिक्री के लिए डिक्री का भी बड़ा, चलो एक बार फिर देख लेना उसको. 30 days. ठीक है, this is one set of litigation is now completed, wherein you initiated with the suit and ultimately concluded till judgment. अब मैं second set of litigation बोलता हूँ when somebody is to derive or revise the fruit of the decree, that is what we call execution. At length we have done it for 2-3 days. It's a very exhaustive revision, contained 106 rules. सबसे बड़ी है ये revision. तो उसमें हमने मोड के बारे में डिस्कस किया, या that you can attach the property of somebody, detain somebody, or you can, sell the property of somebody. फाइन. और सेलिंग के लिए अगर कोई रेजिस्टेंस आती है तो उसको कैसे हैंडल करना है, सेल अगर गलत हुई है तो उसको सेटिस्फाइड किस तरह से किया जाना है, वो सारी प्रोविजंस हमने पढ़ ली. व्हाट कैन नॉट बी अटैच्ड वो पढ़ लिया, मनी डिक्री में वुमन कैन नॉट बी अरेस्टेड वो पढ़ लिया, ठीक है, ये सब प्रोविजंस हमने देख ली 20. अब आपकी जो इंसिडेंटल प्रोसीडिंग्स हैं वो 22 से शुरू हो जाते हैं. तो 22 अबेटमेंट की बात करते हैं कि वेदर, तो उसमें हमने ये पढ़ा था कि राइट टू सू सर्वाइव करता है तो अबेटमेंट कैन नॉट टेक प्लेस, एंडर्स आर रिक्वायर्ड टू बी ब्रॉट ऑन द रिकॉर्ड, ठीक है. तो इसमें राइट टू सू में इस पे आपने ट्रस्ट देना है, वो रेस्ट आउट रूल्स या फिर गो थ्रू 23 विड्रॉल और एडजस्टमेंट की, अगर आपने लीव ली है कोर्ट से या लीव नहीं ली है तो उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस रहेंगे, 23. देन इंपॉर्टेंट वन 26 हमने पढ़ा था, कमीशन. For what purpose they are appointed and what are their powers and duties, commissioners का. For the examination of the witness outside the jurisdiction, abroad, for the inspection of the property. So many things which the commission can do. 41, then we discussed appeal, appealable order 43, then we discussed reference review and revision 115, read with 227, then interlocutory order we discussed at length, okay, order 20 rule 6 onward, no, sorry, order 39 rule 6 onward, interlocutory order, read with section, किस सेक्शन के साथ पढ़ा था इसको, 94 and 94. ठीक है, nothing left. Now we come to the section 148 onward. Caveat, inherent power. ठीक है, clerical and mathematical error 152, 153A and B. Important. The rest of this section you are to read. Section 75 to 78 with the order 26 and order 37 onward execution के साथ में पढ़ने हैं. तो ये है आपका total overview of CPC. ये कोई मुश्किल नहीं है, it is very easy, but how do you take it? Fine, that matters a lot. It's very simple, easy, not very complex, but people have become so formidable. I do not know as to why do they become fearful. जब CPC की बात आती है कि सर ये तो आता नहीं, बहुत मुश्किल है. So nothing is difficult. It is a matter of your interest and understanding only. Okay. So I hope this session has been useful for them who have joined for the first time with us. And since tomorrow is Dussehra, enjoy it to the fullest extent. Happy Dussehra to all of you. All the very best. And बहुत अच्छे से, हाँ जी, कुछ पूछिए. Yes, if you want to ask something, like you can ask. सुकन बेटा अब तू माइंड मेकअप कर ले, क्लासरूम में आएगी तो यू वुड बी मोर पॉलिश एंड रिफॉर्म्ड. ठीक है, अभी कल तो दशहरा है, कल नहीं, डे आफ्टर टुमारो यू कम,
then we'll discuss. हाँ, फिर आपका action plan बनाते हैं हम लोग. And you have to make through in the first go. Since your father has done a lot of hard work and he's there as an inspiration for you, you have lot many things to be learned from him because I have learned from your dad. Right? So I could really tell you that he is a gem of person, the most hardworking, efficient, dedicated, and sincere fellow I have ever seen in my life. Right? So he has fought against all the odds and established himself. Now you have a nice office, lot of work to be done, but still I really want you to join the classes and make it through in the first go, and you can do it. Okay, rest you come day after, we'll discuss at length. Chali, anyhow, thank you so much for joining with us. We have another class now of Indian Evidence Act. We'll be starting it soon. After Pooja ji, 15 minute के बाद में आप join कर लीजिए. ठीक है? Let me have a cup of tea now. Okay, bye bye.